Hello friends, welcome to Genius Education Academy. Myself Jinesh Patel. Today we are going to study a substitution method of standard 10th exercise 3.3. Let us take an example. Root 2x plus root 3y equals 0. Root 3x minus root 8y equals 0. So what you have to do, you have to find the values of x and y. Otherwise, you have to find the solution of the given pair of equations. So, how would you find that? Let us know. So, first, there are total 3 methods. Actually 4. But for finding direct x and y, 3 methods are there. Substitution method, elimination method, and cross multiplication method. And the last method, whose name is not there, but it is a supposition method. उसके अंदर क्या होता है, एक्स वाई नीचे होंगे, तब क्या करना है वो हम लास्ट में देखेंगे. अभी पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक और एग्जांपल लेते हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का डिटेलिंग थोड़ा दिया था. इस बार एक और हार्ड सम लेके उसको थोड़ा और समझते हैं. लेट अस टेल और assume equation 1 and 2. So what we will do, we will first of all make a subject of x or y from any of this equation. First step is we have to suppose or subject x or y. We will make x as a subject. So what we will do, from equation 1, x को मुझे सब्जेक्ट बनाना है. बाकी सब मैं क्या करूंगा, I will send it to right hand side. Okay, first of all root 3y goes to right hand side, so minus root 3y. Now root 2 is in multiplication with x, so it will go towards denominator on the right hand side. जब वो right side जाएगा तो वो denominator में चला जाएगा. Okay, I can write square root different or on the same root 3/2 y. Yes, this is your value of x. Call it equation number 3. Now what you have to do, you have to substitute this value. What is our method? Substitution method. So in substitution method, you have to substitute the value of x or y in an equation. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में से सब्जेक्ट बनाई, अब उसको फर्स्ट में नहीं रखेंगे, अदरवाइज 0 = 0 ऐसा आएगा. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू में से x लिया हमने, उसको सेकंड में रखेंगे. अगर आप सेकंड से x लेते तो उसको फर्स्ट में रखते, वाइस वर्सा. ओके, सो लेट अस substituting इक्वेशन नंबर 3. पूरा ना लिखना पड़े इसलिए हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2. Here we have no choice, we have to compulsory put the value of equation 3 in 2, not in 1. Okay, so first of all we will write equation number 2. Yes, now what is x? Minus root 3 by root 2 into y. x की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे. माइनस को बाहर ले लो, दैट इज द वैल्यू ऑफ x. माइनस था वो मैंने बाहर लिया. अगर आपको यहाँ पे ना लेना हो तो यहाँ पे भी रख सकते हो माइनस. ओके, नेक्स्ट स्टेप पे हम उसको बाहर लेंगे. स्क्वायर रूट 8y इक्वल्स 0. Then next I will solve this bracket. Yes, minus will move towards outside. Square root of 3 into square root of 3. Square root of 3 into square root of 3. What will be the answer? कोई भी सेम नंबर हो और स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट चला जाएगा. इन शॉर्ट आपको याद रखना है स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू x. क्लियर एवरीवन, ये आपको याद रखना है. सो स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इज 3 अपॉन स्क्वायर रूट 2 y minus root 8y equals 0.
अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y को कॉमन लेते हैं। यस, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप what we will do, so we will solve this bracket. y as it is माइनस माइनस प्लस, बट उसके पहले नीचे डिनोमिनेटर है तो हम एलसीएम ले लेंगे। ओके, व्हाट इज आर एलसीएम, स्क्वायर रूट ऑफ 2, इधर मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2, तो क्या होगा -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पे नीचे 1 है। स्क्वायर रूट 2 ओवर एलसीएम, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन square root 2 equals 0. Then next step, square root of 16. You know the value of 16. Square root of 16 is 4. Very good. -3 -4. अब स्क्वायर रूट 2 को मैं सामने भेजिए। नेक्स्ट स्टेप में बात करें, चलो। -3 -4 that is -7 upon square root of 2 is equals to 0. Okay, then next step, what we will do, yes, square root of, okay, so what we will do, this whole bracket will move towards right hand side, so it will become 0 because 0 multiplied by any number is equals to 0. Now we will substitute this value of y in any of the given equation 1, 2 or 3. कहीं पे भी हम y की वैल्यू रखेंगे, either in equation 1 or 2 or in 3. सबसे इजी थर्ड में रख दो। substitute y equals 0 in equation 3, we get, क्या मिलेगा हमको, इधर y की जगह हम 0 रखो तो ये मल्टीप्लीकेशन में है, पूरा क्या हो जाएगा 0, सो वी गेट x इक्वल्स 0। अंडरस्टूड व्हाई 0? सो आवर सॉल्यूशन इज, so the solution is x equals 0 and y equals 0. So that is the substitution method. Now next, exercise 3.4, in which we will see another method, that is elimination method. You have heard the name elimination method. What is elimination method? Let us see by one example. Yes, now we are going to study elimination method. Here is the sum. Let us take any random example. Okay, it is not an example exercise 3.4. I am taking it any example. X plus y equals 14. That is your first equation, and second one is x minus y equals 4. So what you have to do? You have to find same as exercise 3.3 में हमने जो किया था वो इसमें करना है। आपको x y की वैल्यू फाइंड करनी है, अदरवाइज ये इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, सो वी विल फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y बाय सेकेंड मेथड, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। सो लेट अस चेक हाउ टू फाइंड इट। एलिमिनेशन मेथड मीन्स व्हाट? सबसे पहले उसका मतलब समझते हैं। एलिमिनेशन मेथड आपने ऐसा नाम सुना होगा, शायद कहीं पे यूज भी किया होगा। सो व्हाट इज मीन बाय एलिमिनेशन मेथड? एलिमिनेशन मतलब कुछ एलिमिनेट करना ऐसा लग रहा है। सेम, यस, वी हैव टू एलिमिनेट एनी वन वेरिएबल आउट ऑफ दिस टू वेरिएबल्स। सो व्हाट यू हैव टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक देयर कोएफिशिएंट्स इक्वल, साइन ऑपोजिट, देन यू हैव टू एलिमिनेट। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, y का भी 1 है। ओह यस, ये एग्जांपल सबसे बेस्ट और सबसे इजी है। क्या करना है आपको? दिस इक्वेशन को आपको पहले लिख देना, दोनों इक्वेशन।
इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं. ओके, देन द फर्स्ट स्टेप व्हाट टू डू. अगर आपके कोफिशिएंट्स इक्वल हो, सो वी विल एलिमिनेट प्लस वाई माइनस वाई. हमको यहाँ पे क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, जिसका कोफिशिएंट सेम हो, वेरिएबल सेम हो और साइन ऑपोजिट हो. कोफिशिएंट सेम, वेरिएबल सेम एंड साइन ऑपोजिट. यहाँ पे एक्स है बट दोनों प्लस है तो उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते. वाई एक प्लस है एक माइनस है, यस, और कोएफिशिएंट इनका 1 है. सो वी विल एलिमिनेट दिस वाई. सो एक्स प्लस एक्स 2x, 14 प्लस 4 18. अब ये करने से पहले आपको एक चीज करनी है जो जल्दी जल्दी में आप लोग भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने पहले नहीं की, अब मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको याद रहेगा. ये इक्वेशन आपने 1 और 2 इधर क्या किया तो वहां पे लिखना पड़ेगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, सो x प्लस x 2x. अब 2 सामने जाएगा, so x will be 18 by 2. It means x equals 9. That is the value of x. अब next step y find करना है. y कैसे find करेंगे? As you know, substituting value of x in any of these equation, we will get y. इक्वेशन 1 में भी कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी. इक्वेशन 1 में कर रहा हूं. देखते हैं क्या होता है. x इक्वल्स 9 रखना है आपको यहाँ पे. पहले कभी भी रखो उसके पहले आप लोग इक्वेशन 1 जो है वो लिख दो, जिससे कभी गलती ना हो. x प्लस वाई इक्वल्स 14. x की वैल्यू 9 है, प्लस वाई इक्वल्स 14. What will be your y? 14 minus 9, 5. So our solution is x equals 9, y equals 5. That's it. Elimination method सबसे फेवरेट मेथड है मेरी. और अगर आपको एग्जाम में कुछ भी ना बोला हो कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एनी मेथड, इसका मतलब आपको सिर्फ ऐसा बोला सॉल्व दिस टू इक्वेशन और फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. So which method you will prefer? So I prefer the substitution method or elimination method. और सबसे बेस्ट है उसमें elimination method. ये सबसे easy है, सबसे अच्छी method है. Now let us take another example. 2x plus 3y equals 8. 4x plus 6y equals 7. Here you have to find value of x and y by elimination method. सो एलिमिनेशन मेथड आपको पता ही है, अभी हमने यहाँ पे देखा क्या करना है. बट हियर कोफिशिएंट ऑफ x एज वेल एज y आर इक्वल, सो ये डायरेक्ट हो गया. अब इसमें ऐसा नहीं है. देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6, और साइन भी ऑपोजिट नहीं है. तो क्या करेंगे अब? दैट इज द क्वेश्चन. तो अगर आप नोटिस करो, लेट अस गिव द नेम इक्वेशन 1 एंड 2. Equation 2 is double of equation 1 on left hand side. Equation 2 is double of equation 1 on left hand side. Yes, 4x that is double of 2x, 6y that is double of 3y. 7 8 का डबल ऐसा नहीं, इस साइड की बात कर रहा हूँ, वहां पे कुछ भी हो चलेगा, डजंट मैटर. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. अब इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. हमको लेफ्ट साइड डबल चाहिए, बट मैथ्स पे पार्शियलिटी हम नहीं कर सकते. जो भी चीज लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करोगे वही सेम नंबर आपको राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई टू होल इक्वेशन नंबर 1. सो लेट अस राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2. इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. Okay, yeah, so 2 into 2x plus 3y 2 into 8. 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा. 2 2 जा 4x plus 3 2 जा 6y
8 2 जा 16, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब इक्वेशन 3 और 2 को देखो, 1 को भूल जाओ, 1 को हमने 2 मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 3 नाम दे दिया है। सो नाउ वी विल सॉल्व इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। 2 और 3 में अगर आप देखो तो क्या सेम है, x और y दोनों ही सेम है। सो व्हाट यू विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 और 3 फ्रॉम 2, वॉट एवर इज पॉसिबल वी कैन डू। हम 3 में से 2 माइनस करें या 2 में से 3 माइनस करें, आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर सेम ही रहेगा। सो लेट अस सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3। सो वी विल राइट subtracting equation 2 from equation 3। फ्रॉम मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन में एक चीज आपको याद रखनी है, फ्रॉम मतलब फ्रॉम के बाद जो लिखा है वो पहले आएगा, माइनस सेकेंड इक्वेशन। ओके, सो क्या करेंगे हम, पहले थर्ड इक्वेशन लिखो, 4x प्लस 6y इक्वल 16। सेकेंड इक्वेशन लिखो, 4x प्लस 6y इक्वल 7। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, एडिशन में आपने सिर्फ डायरेक्ट कट करके आंसर लाना है, सब्ट्रैक्शन में एक स्टेप ज्यादा आएगा, साइन चेंज करनी है। साइन चेंज, जैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के अंदर लॉन्ग डिवीजन सीखा था, उसके अंदर जब भी हम डिवाइड करते थे तो नीचे साइन चेंज कर देते, दैट इज वी आर सब्ट्रैक्टिंग दैट नंबर। सो पॉजिटिव हो तो नेगेटिव साइन करनी है, अगर माइनस हो तो प्लस करना। 4x 4x कट, 6y 6y कट, तो यहाँ पे आया 0। 16 माइनस 7 दैट इज 9। सो 0 इज नॉट इक्वल्स टू, सर यहाँ पे तो x और y की वैल्यू आई नहीं, तो क्या करेंगे हम, यस एनी आइडिया? तो हम क्या बोल सकते हैं, that the pair of equation has no solution। yes, एग्जाम में ऐसा भी सम आएगा, सर हर बार x और y की वैल्यू आए ऐसा जरूरी नहीं है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल विच इज ऑल्सो क्वाइट IMP, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? बिकॉज आप x और y की वैल्यू फाइंड करोगे, यहाँ पे नहीं आता, अरे मैंने कुछ गलत किया, वापस करोगे तो आपका 15 to 20 मिनट्स इसके अंदर चला जाएगा, और लास्ट में आपको पता चलेगा भाई इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। सो यू हैव टू डायरेक्ट find accordingly and then you have to write answer that given equations, the given pair of equation has no solution। given pair of equation has no solution in sense कि x और y की ऐसी कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है जिसका सम करोगे 2x प्लस 3y तो 8 आएगा। सेम वे 4x प्लस 6y का कुछ करोगे तो 7 आएगा, ऐसी कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं है। अंडरस्टूड? लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। दिस इज एग्जांपल नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.4। क्वाइट डिफरेंट। व्हाट यू हैव टू डू, solve it by elimination method, that is our heading। first equation 3x minus 5y minus 4 equals 0। अभी तक जो एग्जांपल्स आपने देखे उसमें क्या था, x और y लेफ्ट साइड था, कांस्टेंट राइट साइड, यहाँ पे सभी लेफ्ट साइड। तो क्या करेंगे, अब कांस्टेंट को राइट साइड भेज दो, 3x minus 5y minus 4 goes towards right hand side, so it will become plus 4। call it equation number 1। देन सेकेंड 9x इक्वल्स 2y प्लस 7। अब y वेरिएबल राइट हैंड साइड है, उसको हम खींच के लेफ्ट साइड ले लेंगे। 9x प्लस 2y गोज टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 2y is equals to 7। call it equation number 2। now we will eliminate these two equations to find our solution। how? here variable y and x contains different coefficients। Here x coefficient is 3, in y 5, here x 9 and y 2 minus 2। So what we will do? First of all we will multiply equation 1 by 3।
बिकॉज यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा, 3 से। इट मीन्स पूरे इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे x के कोएफिशिएंट इक्वल आ जाएंगे। फिर हम एलिमिनेट करके y फाइंड करेंगे। यस, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3, we get what we will get, 3 से मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन, 3x है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 9x माइनस एज इट इज, 5 3 जा 15y, 4 3 जा 12, call it equation number 3. Now the next important step, we will subtract equation 2 from 3 or 3 from 2. Let us subtract 2 from 3. Subtract equation 2 from equation number 3. Subtract 2 from 3, or you can write equation 2 from equation 3. सर subtract क्यों किया, ऐड क्यों नहीं किया? बिकॉज यहाँ पे 9x दोनों की साइन सेम है। अगर जब साइन सेम होगी तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर साइन ऑपोजिट होगी तो आपको सिंपल ऐड करना है। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, फ्रॉम के बाद कौन है, थर्ड, सो थर्ड इक्वेशन हम पहले लिखेंगे। 9x minus 15y equals 12, 9x minus 2y equals 7. Yes, subtracting means साइन अपोजिट कर दो, किसकी, दोनों की नहीं, नीचे वाली इक्वेशन की। प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब इसकी जो पुरानी साइन है वो भूल जाओ, नई साइन कंसीडर करो इसकी। प्लस 9x, प्लस नहीं है 9 9 18 नहीं करना है यहाँ पे, प्लस 9x माइनस 9x, सो ये कट हो जाएगा। माइनस 15y माइनस 2y नहीं, फिर से एक बार, माइनस 15y प्लस 2y, so minus 15 plus 2, that is minus 13y, and here's 12 minus 7, 12 plus 7 नहीं करना, 12 minus 7, that is 5. So what is the value of y? माइनस सामने भेज दो, 13 को नीचे भेज दो, माइनस 5/13, that is the value of y. Now we will find x. How? By substituting y in any of these 3 equation. अब देखो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन सेम है, तो या 1 और 2 में से किसी एक में रख देते हैं। छोटी वाली 1 है तो उसके अंदर रखो, कैलकुलेशन आपको कम करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट की जगह प्लेस लिख सकते हो, पुट लिख सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ y minus 5/13 in equation number 1, in 1 or in equation 1. 3x minus 5y equals 4, पहले हम इक्वेशन लिख देंगे, 3x minus 5y equals 4. अब y की वैल्यू है आपकी माइनस 5/13, y की जगह आप क्या लिखोगे, माइनस 5/13. Okay, now माइनस माइनस, ये therefore करना है माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25/13 equals 4. This 25/13 will move towards right hand side, माइनस बराबर करते हैं, yes. Now 13 is the LCM, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 13 4 जा 52, माइनस 25/13, ये 3 इसको नीचे भेज दो, 52 माइनस 25 27, यस, अपॉन 13, ये 13 है, ये 3 डिनोमिनेटर में जाएगा, 3 9 जा, कट हो रहा हो तो करना है, सो योर फाइनल आंसर इज 9/13, that is the value of x.
x equals 9 upon 13, y equals minus 5 upon 13. So the solution of given pair of equation is x equals 9 upon 13, y equals minus 5 upon 13. That's it for the elimination method. Then the next method which comes is cross multiplication method. Cross multiplication method is quite typical. I won't say difficult, but it's quite typical.